Hello everyone, welcome to Genic Education. So in this video lecture, we'll be discussing some numericals on losses of the transformer, and also we'll discuss the testing of the transformer. So this is the sixth lecture, okay? So already we have covered the basics, the equivalent circuit of the transformer, the constructional details of the transformer, the numericals on the first three topics, and in the fifth lecture we discussed regarding the losses of the transformer. So in the last class we have already discussed in detail what are the types of losses in transformer and what is the formula for finding the losses. But I have completed only the iron losses inside the transformer. So basically your iron losses is divided into hysteresis losses and eddy current losses. And what is the numericals? What is the formula used for the numericals? Also we have discussed. Okay. Now just focus on two numericals. So the first question is a single phase transformer when applied from 220 volt 50 Hz has a eddy current loss of 50 watt. Okay, in this question eddy current losses has been given. Eddy current is how much? 50 watt at 220 volt 50 Hz frequency. Okay, 220 volt 50 Hz frequency. So we have to find the eddy current losses. Suppose this one is WE1. We have to find WE2 at 330 volt 50 Hz frequency. Correct? So in this case, see, we know the formula for eddy current losses. It depends upon which parameter? Flux density and frequency. So can you tell me in this case whether the flux density is constant or variable? Whether the flux density is constant or variable. Flux density is directly proportional to the supplied voltage divided by the frequency. So in the first case, the flux density is given by 220 divided by 50. In the next case, it is 330 divided by 50. So definitely numerator are different, denominator is same. So it is not same. Okay, so the flux density is not same. So flux density is not at all same. Okay, flux density is not at all same. Agar flux density same hota, then we know this formula WE will be directly proportional to F square. Correct? Now how to solve this question? Tell me. ये तो constant flux density का केस नहीं है, so ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा. So क्या करेंगे हम लोग? We know one thing. We know the formula for eddy current losses, which is given by K times K Bmax square F square T square. What is K? Some constant. What is T? Thickness of lamination. Okay. Now again Bmax क्या होता है? That is given by V1 by F, supplied voltage by supplied frequency. Okay, so WE will be directly proportional to Bmax square F square. That implies WE is directly proportional to Bmax is how much? V1 by F whole square into F square. So you can see here F square and F square will cancel out. So I can write WE is directly proportional to V1 square. WE is directly proportional to V1 square. V1 is the supplied frequency. Remember one thing. Here V1 is the supplied voltage. Correct? Don't say कि सर V1 यहाँ पे 220 है and V2 330 है. No, I have considered the supplied voltage at V1. ठीक है, supplied voltage as V1. So यहाँ पे क्या होगा? I can write here. I have to find WE2. So WE2
डिवाइडेड बाय WE1 इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 220 का होल स्क्वायर. ओके, सो यहां पे क्या होगा 3/2 होल स्क्वायर. दैट इंप्लाइज WE2 विल बी हाउ मच 9/4 इंटू WE1. WE1 कितना है 50 है. सो क्या होगा 50 9 जा 450 डिवाइडेड बाय 4. सो क्या होगा 112.5. एनी ऑप्शन इज मैचिंग? यस, ऑप्शन बी इज मैचिंग हियर. ऑप्शन बी इज मैचिंग. ओके, सो द एडी करंट लॉसेस वुड बी हाउ मच 112.5 watt. ओके, दिस इज ऑफ कोर्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहां पे बस एक ही चीज करना है, आपको पहले ये देखना है कि वेदर योर फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट और नॉट. अगर फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होता देन ईडी करंट लॉसेस क्या होगा. अगर मान लो 1 मिनट के लिए कांस्टेंट है देन ऑब्वियसली ये डायरेक्टली 50 वाट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है. इसीलिए क्या होता ईडी करंट लॉसेस 50 वाट. प्रीवियसली जो वैल्यू था, मतलब मान लो ये रेटेड और नॉमिनल वोल्टेज है, तो ये वैल्यू में जितना एडी करंट लॉसेस आता उतना ही होता. बट इन दिस केस वोल्टेज इज हाई, फ्रीक्वेंसी इज लेस, फ्रीक्वेंसी इज रेटेड ओनली. सो यहां पे एडी करंट लॉसेस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. करेक्ट है. एंड ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, WE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर. दिस इज द इंपॉर्टेंट टूल्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड एडी करंट लॉसेस क्या होगा, यहां पे इंक्रीज हो जाएगा. ओके, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज हाउ मच बी. दिस इज ए प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन. ESC 2001. This is also previously asked question. This is ESC 2002-2008. Okay, remember one thing. See, GATE exam. I'm first talking about GATE exam. GATE exam में basically क्या होता है, कभी भी exact question repeat नहीं होता है. And many students think that कि नहीं सर, गेट एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है. यस, आई कंप्लीटली एग्री विद दो स्टूडेंट. बट आप ये चीज मत भूलना कि कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बट कंसेप्ट ऑलवेज रिपीट इन गेट एग्जाम एज वेल. क्योंकि आप सोचो कि मशीन्स में कितने सारे कंसेप्ट हो सकता है. वहीं मान लो 40 कंसेप्ट है, वही 40 में से ही तो आएगा ना. तो कंसेप्ट तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होने वाला है, कंसेप्ट तो रिपीट होगा ही ऑब्वियसली. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर साल नया नया कंसेप्ट आ रहा है, नया नया फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस हो रहा है, नया नया एनालिसिस हो रहा है. ऐसे तो नहीं होता है. एक ही मशीन वो स्टार्टिंग से जो था अभी भी वही है, उसका बेसिक फंडामेंटल जो था, बेसिक प्रिंसिपल जो था अभी भी वही है. तो कंसेप्ट हमेशा सेम होता है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है गेट एग्जाम में. बट यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में क्या होता है, 20% क्वेश्चन, 20 to 25% क्वेश्चन रिपीट होगा. आपका अगर मान लो प्रीलिम टेक्निकल पेपर है 300 मार्क्स का, ओके, इसमें से 60 to 70 मार्क्स आपका रिपीट होगा. एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट, नहीं तो जस्ट थोड़ा सा डाटा चेंज करके रिपीट होगा. एंड ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपका कन्वेंशनल पेपर में रिपीटेशन ज्यादा होता है, रिपीट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, यहां पे आप एग्जैक्टली 20% क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा, श्योर, इट इज फॉर श्योर. इसीलिए अगर आपका प्रीलिम एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद आपको कन्वेंशनल मेन एग्जाम देना होगा. सो मेन एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप क्या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेके 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे फॉर कन्वेंशनल पेपर? नो, नॉट पॉसिबल. सो
स्टूडेंट्स क्या करते हैं नॉर्मली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल में राइटिंग प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका राइटिंग स्किल क्या है वही आपको डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या आने, वेदर यू विल बी सेलेक्टेड और नॉट, योर राइटिंग स्किल विल डिसाइड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ठीक है, लेकिन उनके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है। तो आप अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जिसका मार्क्स है मान लो 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स में से आपका आंसर आ गया, न्यूमेरिकल्स में आ गया, लेकिन आप स्टेप सही नहीं किए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कुछ मतलब आपका सिस्टमेटिक वे में नहीं है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, आपका हैंडराइटिंग में भी प्रॉब्लम है, डायग्राम आप ठीक से नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें आपका आंसर आ गया है, सपोज मान लो आपका आंसर 112.5 वाट, ओके, बट वहां पे आप 7 मार्क्स मिलेगा। सो अननेसेसरीली आप 8 मार्क्स लूज कर दिए, तो कन्वेंशनल पेपर में ऐसा नहीं है कि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट देन you'll be getting full marks. No, if your writing skill is good then only you'll be selected. तो राइटिंग स्किल को बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। तो राइटिंग स्किल में बहुत सारी चीज होता है। सो बेसिकली गेट एग्जाम में क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक इट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस दे आर सेलेक्टिंग द बेस्ट इंजीनियर ऑफ द कंट्री, तो उनके पास सारे क्वालिटीज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको आप पढ़ना पड़ेगा। तो आपका राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल अच्छा नहीं होगा तो कैसे पढ़ पाएंगे आफ्टर द जॉब आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। सो दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। So read the question carefully and try to find out the answer. The full load copper loss and iron loss of a transformer are 6400 watt and 5000 watt respectively. Find copper loss and iron loss at half load respectively. First of all, sir, आप तो डिस्कस नहीं किए हैं कॉपर लॉसेस के बारे में, then how can we solve this question? See, कॉपर लॉस क्यों हम डिस्कस नहीं किए इतने फोकस करके, ऑलरेडी हम इक्विवेलेंट सर्किट में बता चुके थे आपको कि नहीं, कॉपर लॉस इज नथिंग बट योर I2R लॉस, दैट इज कॉल्ड योर ओमिक लॉस। एंड कॉपर लॉस क्यों आएगा, ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 1000/100 वोल्ट, दिस इज द वोल्टेज रेटिंग, 10 kVA 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, ओके। इसका वाइंडिंग रेसिस्टेंस R1 इज 0.5 ओम एंड R2 इज 0.1 ओम, ओके। वाइंडिंग रेसिस्टेंस ऑफ द HV साइड इज 0.5, LV साइड इज 0.1। हमेशा HV साइड का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि HV साइड में करंट कम है इसीलिए ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। नाउ दिस इज योर ट्रांसफार्मर, ओके। सो दिस वोल्टेज इज हाउ मच, 1000 volt, and this voltage is how much, 100 volt. So the current in the primary and secondary will be how much, I1 कितना होगा, I2 क्या होगा, I1 will be 10, see we know that S is equal to VI, the kVA rating is given by voltage into current. So I1 will be the kVA rating or the apparent power rating divided by the voltage rating V1. So 10 into 10 to the power 3, V1 क्या होगा 10 to the power 3, so ये क्या होगा 10 amp. Similarly I2 क्या होगा आपका, it will be 10 into 10 to the power 3 divided by the voltage is how much, 100, so it will be 100 ampere. करंट क्या होगा 100 ampere, okay. Now I have to see ये जो करंट्स है
the 10 ampere and 100 ampere, these are the rated currents. These are the rated current. Rated current और full load current. Full load current भी बोल सकते हैं, ठीक है, full load current. Now what will be the copper losses in the primary? Primary side copper loss क्या होगा? What will be the primary side copper losses? I1 square into R1. तो I1 square क्या है? 10 है. 10 square into R1 is how much? 0.5. 0.5. So it will be how much? 50 watt. Similarly, secondary side copper loss is equal to I2 square into R2. Okay, I2 square into R2. So I2 is how much? 100 square. 100 square into 0.1. 100 square into 0.1. So ये क्या हो जाएगा? 1000 watt. Okay, so total copper losses. So total copper losses will be how much? 1000 plus 50 is equal to 1050 watt. Okay, 1000 plus 50 is equal to 1050 watt. So this is all about your copper losses, and of course this copper loss is full load copper loss. I repeat, this copper loss is full load copper loss because you are finding the copper loss at full load condition for the full load current. That's why it is full load copper loss. Now come to this question. The full load copper loss and iron loss of a transformer are how much? Full load copper loss 6400 watt. Iron loss is how much? 5000 watt. Find copper loss and iron loss at half load respectively. So what is the condition? Whether your iron loss depends upon the load condition, tell me. First of all, tell me, copper loss is a function of what? Copper loss is a function of what? Is a function of which variable? Which one is the variable in order to find the copper loss? See, copper loss is given by I square into R. R is a constant or variable. अगर एक बार आपका ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हो गया, देन R is a constant. So which one is variable here? Current. क्योंकि ये करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड के ऊपर. अगर लोड बढ़ेगा, लोड मतलब क्या है? इंटरनली लोड मतलब क्या है? करंट. अगर लोड बढ़ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? करंट बढ़ेगा. सपोज आई हैव ए लोड. लोड मीन्स हियर इलेक्ट्रिकल लोड, नॉट मैकेनिकल लोड. मैकेनिकल लोड कहां पे हम पढ़ेंगे? When we will discuss the rotating machine, that is motor. मोटर के केस में हम मैकेनिकल लोड पढ़ेंगे. Because our target, see, the मोटर का मेन टारगेट क्या होता है? Just a minute. मोटर का मेन टारगेट क्या होता है? We have to produce a torque. So torque produce होगा to drive a mechanical load. Our main target of the motor to drive a mechanical load, and in order to drive our mechanical load, I need an electromagnetic torque. This is the main objective of studying the motor. But in this case, load means electrical circuit में load का मतलब क्या है? That is an electrical load which consumes power, which consumes electrical power. They are mechanical power. Here in electrical load, it consumes electrical power. So electrical power means it consumes the current. So load अगर बढ़ेगा, इसका मीनिंग क्या होगा? Current drawn by the load will increase, or power supplied by or the current supplied by the source will increase. This is the meaning of load. So load is a function of what? Current. And copper loss is a function of what? Current. So this current is variable or constant? It depends upon the load. So we don't have any control over the load. Whether it's my wish that now I can on the AC or on the or switch off the AC. It's my wish. अगर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं
AC ऑन होना चाहिए, देन आई कैन ऑन दिस AC। तो ये मेरे विश पे डिपेंड कर रहा है। एंड हु एम आई एम ए कस्टमर, आई एम ए कस्टमर। सो ये मेरा विश है whether I can switch on the AC or switch off the AC. So if I'll switch on the AC, then it will consume power. Consume power means the current supplied by the source will increase or not? Yes, it will increase. अगर हम इसको ऑफ कर देंगे then current supplied by the source will decrease or not? Yes, decrease, because it will not consume power. It will not take any power. ठीक है, तो ये कंप्लीटली कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो लोड इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट, व्हाई लोड इज ए वेरिएबल। अगर लोड वेरिएबल है, इंटरनली क्या वेरिएबल होगा? करंट वेरिएबल होगा। सो करंट अगर वेरिएबल है तो कॉपर लॉसेस क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। सो कॉपर लॉसेस इज रिगार्डेड एज योर वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस, this is regarded as variable losses. Now come to the iron loss. So in the last class we have discussed iron loss is due to the magnetic material in the core of the transformer. Okay, the magnetic material in the core of the transformer. So inside the magnetic material, which one is set up? Flux is setting up. Already I told in the previous class, फ्लक्स सेटअप इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो कोर में क्या अवेलेबल है? फ्लक्स है। सो यही फ्लक्स के रीजन से ही आपका हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉसेस हो रहा है। सो योर आयरन लॉस इज ए फंक्शन ऑफ, आयरन लॉस इज ए फंक्शन ऑफ फ्लक्स। करेक्ट है? यहां पे कोई डाउट है? हाउ आयरन लॉस इज ए फंक्शन ऑफ फ्लक्स? Because iron loss occurs inside a magnetic material, and in this case the magnetic material is the core of the transformer, and inside the core flux is setting up, no other things, because it is magnetic circuit. It is not at all an electrical circuit. It is an electrically, see, transformer is electrically isolated, magnetically coupled, and which coupling the two windings? Core is coupling the two windings by setting up a common flux, common path for flux. Am I correct or not? Now that's why your iron loss is a function of flux. But another thing I have already told you, transformer is a constant flux device. Transformer is a constant flux device. So flux अगर constant है, iron loss क्या होगा? constant ही होगा ना, constant ही होगा, constant होगा। ठीक है, so copper loss is a variable loss, iron loss is a constant loss. Okay, got the point? But don't tell sir यहां पे अगर iron loss constant है तो यहां पे दूसरा आंसर कैसे आया? Am I correct or not? सर यहां पे आप बताए कि आयरन लॉस कांस्टेंट है, ईडी करंट लॉस भी तो एक आयरन लॉस होता है ना, तो यहां पे 50 वाट होना चाहिए, यहां पे चेंज कैसे हो गया? नो, आयरन लॉस डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स ना। अगर फ्लक्स वेरिएबल होगा तो ऑब्वियसली आयरन लॉस भी चेंज होगा। इन दिस केस फ्लक्स इज वेरिंग, सी फ्लक्स इज वेरिंग बाय वेरिंग द सप्लाइड वोल्टेज एंड सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई योर ईडी करंट लॉसेज इज चेंजिंग। बट मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा तब जाके आयरन लॉस कांस्टेंट होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एम आई करेक्ट और नॉट? सो वी हैव डिस्कस्ड द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर in a very proper manner. Now let's proceed to which one? Next topic, tell me. अच्छा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए ना? ओके, जस्ट अ मिनट। तो आयरन लॉस कांस्टेंट होगा, आयरन लॉस कांस्टेंट मीनिंग यहां पे 5000 वाट होगा। आयरन लॉस क्या होगा? 5000 वाट। तो कोई भी ऑप्शन में आपका 5000 वाट आयरन लॉस नहीं है तो ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ही होगा। सी, अगर कोई भी एग्जाम हो अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जाम कोई भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो तो आपका
ये भी एक अप्रोच होना चाहिए कि ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट कर सकें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेट एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट BARC एग्जाम एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, ईपीएस, इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विसेज, ये दोनों एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, मेनली ऑप्शंस के थ्रू भी जाना पड़ता है। सी यहां पे आपको पता है आयरन लॉस कांस्टेंट, आयरन लॉस कांस्टेंट मीनिंग 5000 होगा, तो कोई भी ऑप्शन 5000 नहीं है ना, तो बाय डिफॉल्ट डी ही होगा। नो नीड टू कैलकुलेट द कॉपर लॉस एट हाफ फुल लोड कंडीशन। सो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कॉपर लॉस एट हाफ फुल लोड कंडीशन। copper loss at x of full load is equal to x square into w cu full load. x is a fraction which ranges from 0 to 1. तो हाफ फुल लोड मतलब x क्या होगा, हाफ होगा। सो इट विल बी 1/4 इंटू WCU फुल लोड, क्या होगा 6400। सो इसका आंसर क्या आएगा 1600 वाट, 1600 वाट। ओके, गॉट द पॉइंट। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। So first one is your open circuit test. Short circuit is your open circuit test. So these are the experiment you have to conduct in the lab. So कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उसका फर्स्ट लाइन में क्या लिखा जाता है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड नेक्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्टिव। याद है कुछ जो बीटेक में आप लोग किए थे, और इन साइंस फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, यानी लेबोरेटरी, आपका एक्सपेरिमेंट में पहले आपका क्या लिखा जाएगा, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देन ऑब्जेक्टिव। सो टेल मी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट डाउन। द ऑब्जेक्टिव इज to find iron loss and shunt branch parameters. To find iron loss and shunt branch parameters. This is the objective of open circuit test. Okay. This is the objective of open circuit test. Now, how to perform open circuit test? This is primary winding. This one is your secondary winding. Okay. So open circuit means हम क्या करेंगे, दोनों वाइंडिंग को ओपन सर्किट कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है, दोनों वाइंडिंग्स को ओपन कर देंगे। इज इट करेक्ट? नो। ओपन सर्किट में हम क्या करेंगे, एक साइड में सप्लाई देंगे एंड अदर साइड को हम ओपन करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू कीप द सेकेंडरी ओपन, वी हैव टू कीप द सेकेंडरी ओपन। सो सेकेंडरी इज ओपन हियर एंड दिस इज द प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड में हम सप्लाई देंगे, तो यहां पे हमको मेजर करना है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस मेजर होगा, इसका मीनिंग क्या है, आई हैव टू कनेक्ट ए वाट मीटर, I have to connect a wattmeter,
ठीक है, आप मेजरमेंट में पढ़े होंगे। ये है आपका वाट मीटर, ये आपका करंट रीडिंग देगा, ये आपका वोल्टेज रीडिंग देगा, एंड दिस इज द सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई, दिस इज द प्राइमरी साइड। ये है आपका वाट मीटर, दिस वन इज योर वाट मीटर। दिस विल गिव योर नो लोड लॉसेस और आयरन लॉसेस। सो नो लोड लॉसेस इज गिवन बाय VI I naught cos phi naught. Okay, VI I naught cos phi naught. V1 is the supplied voltage, I naught is the no load current. ये आपका कौन सा रीडिंग देगा? नो लोड करंट देगा। ये आपका कौन सा रीडिंग देगा? V1, दैट इज सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ओके। सो नो लोड सर्किट का हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, नो लोड टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो क्या होगा आपका? लेट्स सी। सो नो लोड टेस्ट में, नो लोड में क्या होगा? यहां पे आपका R1 एंड X1 होना चाहिए, बट सी R1 is very small, so neglect it. R1 is very small, so neglect it. So इसको हम अगर neglect करेंगे, then इसका equivalent circuit क्या होगा? This is your supplied voltage, this one is Xm, this is R0, this is IW, this is I mu, this is no load current, and ये आपका ओपन सर्किट है, क्योंकि सेकेंडरी आपका ओपन है ना। सो द करंट हियर विल बी I1 डैश विल बी हाउ मच? 0, एंड ये आपका क्या होता है? I1 होता है। सो I1 इज बेसिकली I1 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I0 होता है। तो I1 डैश अगर 0 है, I1 डैश अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? I1 विल बी I0। एम आई करेक्ट और नॉट? I1 विल बी I0। Okay, so this is the equivalent circuit of the open circuit test. Now, what is the expression for open losses in the open circuit test? This one, and this is called your iron losses. This is called your iron losses. Now let's discuss some important features of open circuit test. So open circuit test में क्या रिजल्ट आता है ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। Now let's discuss the important features. So in a transformer, two sides are there, LV side and HV side. So can you tell me in which side we will conduct the open circuit test? Which side is suitable? So we'll conduct the open circuit test. First of all, tell me, open circuit test gives the result of iron losses. It gives the result of iron losses. So iron loss depends upon which quantity? Iron loss depends upon which quantity? It depends upon flux. Okay? It depends upon flux. And flux must be rated to get the rated iron loss. Flux must be rated to get the rated iron loss. But flux depends upon which quantity? V1 by F. So this V1 and F must be rated to get the rated flux, to get the rated iron loss. Okay? So 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे अगर रेटेड है, रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एंड V1 भी हम अप्लाई करेंगे, V1 भी हम अप्लाई करेंगे। सो मान लो आपके पास एक
1100 डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट, 230 वोल्ट एक ट्रांसफार्मर है. So whether you people conduct this test on the LV side or the HV side, whether you people conduct the test on 230 volt or 1100. So practically क्या है, we are in a lab, we are in a lab, we are in a normal lab, not in a high voltage lab. So normal lab में आपका high voltage available होता है? No, absolutely no. 230 volt single phase, 440 volt 3 फेज, इतना ही अवेलेबल होगा. ठीक है, तो 1100 कभी भी अवेलेबल नहीं होगा नॉर्मल लैब में. 1100 जहां पे है उसको हम क्या बोलते हैं? हाई वोल्टेज लैब, एचवी लैब. एचवी लैब नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं होता है बिकॉज दिस वन इज वेरी कॉस्टलियर. ठीक है, दिस वन इज वेरी कॉस्टलियर. सो 230 वोल्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आई विल गो फॉर टेस्टिंग इन द लो वोल्टेज साइड, क्योंकि नॉर्मली लो वोल्टेज साइड अभी ही अवेलेबल है. ठीक है, सो आयरन लॉस, सो आई विल गो फॉर टेस्टिंग इन द लो वोल्टेज साइड, कीपिंग द एचवी साइड ओपन, कीपिंग द एचवी साइड ओपन. ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ कंडक्टिंग द दिस इज. सी, मुझे आयरन लॉस के लिए क्या चाहिए? मुझे रेटेड फ्लक्स चाहिए. सो रेटेड फ्लक्स दोनों में आ सकता है, 1100 में भी आएगा, 230 में भी आएगा, लेकिन 230 वोल्ट मेरे पास अवेलेबल है. देन आई शुड गो फॉर द लो वोल्टेज साइड. एंड दोनों में लॉसेस कांस्टेंट आएगा, सेम अमाउंट ऑफ लॉसेस आएगा. वेदर यू विल कंडक्ट द लो वोल्टेज साइड और इन द हाई वोल्टेज साइड, इन बोथ द केसेस you will be getting the same amount of iron loss, but one condition must be fulfilled, that is it should be operate at rated flux. रेटेड फ्लक्स मतलब मान लो एचवी साइड है, एचवी साइड का रेटेड वोल्टेज, एचवी साइड का रेटेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो सेम होता है. सिमिलरली एलबी साइड है तो एलबी साइड का वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब जाके आपका रेटेड फ्लक्स होगा एंड आयरन लॉस आएगा. एंड दोनों केसेस में आयरन लॉसेस सेम होगा, बट वी प्रेफर ऑन द लो वोल्टेज साइड बिकॉज लो वोल्टेज इज अवेलेबल इन आवर लैबोरेटरी. दैट इज द केस. ओके, यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओपन सर्किट टेस्ट एंड लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन. ये जो वाट मीटर होता है लो, सी ओपन सर्किट टेस्ट में आपका जो पावर फैक्टर होगा उसका वैल्यू क्या होता है? 0.2 लैगिंग. नॉर्मली ये होता है. व्हाई? बिकॉज द एक्साइटेशन करंट इज मोर एज कंपेयर टू द लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट. सो रिएक्टिव कंपोनेंट अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू द रियल कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली क्या होगा? आपका पावर फैक्टर पुअर होगा. दैट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक ए वेरी प्योरली इंडक्टिव सर्किट, बट इट इज नॉट प्योरली इंडक्टिव, but it is behaving like a purely inductive circuit, right? So open circuit test में पावर फैक्टर क्या होगा? 0.2 लैगिंग. So 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर अगर है तो we can go for low power factor wattmeter, LPF wattmeter, क्योंकि LPF में हम 0.5 तक मेजर कर सकते हैं. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे? UPF, यूनिटी पावर फैक्टर वाटमीटर. एबव 0.5 हम इसको यूज करेंगे, लेस देन 0.5 हम क्या यूज करेंगे? एलपीएफ वाटमीटर. में भी एक बिट्स क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम एग्जाम में, तो इसको ध्यान दो आप लोग. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओपन सर्किट टेस्ट. नाउ विल डिस्कस द शॉर्ट सर्किट टेस्ट. Any doubt you can ask me. If you are having any doubt, then you can ask me. Okay, so all of you please maintain note.
आपको नोट्स मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जस्ट 4 सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है. लेट मी टेल यू समथिंग इन विद इन 2 मिनट्स. सो अभी आपके पास 4 सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है. सो 4 सब्जेक्ट में क्या है? नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड डिजिटल. ये फर्स्ट साइकिल फर्स्ट मंथ. ओके. तो इंजीनियरिंग सर्विस में आपका टोटल 12 सब्जेक्ट्स है एंड जनरल स्टडीज में 10 सब्जेक्ट है. तो टोटल आपके पास 22 सब्जेक्ट्स है. आपको कवर करना है 5 मंथ्स में. सो रिवीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो लास्ट टाइम में आप कैसे रिवाइज करेंगे? नोट अगर होगा तब जाके आप रिवाइज कर पाएंगे. आप वीडियो तो फिर से नहीं दे सकते हैं ना, नहीं देख सकते हैं ना वीडियो. इट इज नॉट पॉसिबल. आपके पास टाइम नहीं है. तो ये सारे जो जितना भी टॉपिक्स चल रहा है अभी, तो आप इसका नोट जरूर मेंटेन करिए हर सब्जेक्ट का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्क थ्योरी और ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल मशीन. तो मेंटेन ए नोट्स. अगर नोट्स मेंटेन नहीं करेंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, रफ पेपर में सब कुछ लिख दिए, एंड 15 डेज बाद अगर आप देखेंगे कि आपके पास नोट्स ही नहीं है रिवाइज करने के लिए, जो सर ने पढ़ाए थे वो आप भूल चुके हैं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आपके माइंड में डाउट आ गया है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या आप पढ़े थे. तो उस टाइम में क्या करेंगे? आपका जितने भी हार्डवर्क था उसको आप इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए. तो हार्डवर्क को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स को मेंटेन करना पड़ेगा. तो नोट्स को अगर मेंटेन करेंगे तब जब आपको डाउट होगा, जब आपको मन करेगा, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं. दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग नोट्स. एंड ये आपका एग्जाम के जस्ट बिफोर में बहुत ही बेनिफिशियल होगा. रिमेंबर, बहुत ही बेनिफिशियल होगा. सो नोट्स आपको मेंटेन करना है, ठीक है. नोट्स आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है. बहुत अच्छे से मीनिंग आपको जैसे कि एडवांटेज हो. ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे डिजाइन कर लिए और कुछ काम का नहीं होगा, ठीक है. अब आपको जैसा अच्छा लगे ऐसे ही एक नोट्स बनाना है एंड साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट 1 मार्क्स. ये दोनों प्रैक्टिस करना है. आपको डेली टाइम असाइन करना है एंड प्रैक्टिस करना है. एंड मेंटेन नोट्स अगर कर रहे हैं तो इसका तो कुछ एप्लीकेशन होगा ना, कुछ यूज होगा. अदरवाइज व्हाई यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन मेंटेनिंग नोट्स? उसका कुछ तो यूज होना चाहिए. तो क्या यूज करेंगे? अब रिवाइज करना है. एटलीस्ट वीकली वंस आपको रिवाइज करना है सारे सब्जेक्ट्स का. वीकली वंस आपको रिवाइज करना है सारे सब्जेक्ट्स का. देन ओनली योर मेंटेनिंग नोट्स एंड ऑल योर हार्डवर्क फॉर योर क्रैश कोर्स विल बी वर्दी. अदरवाइज इट विल बी वर्थलेस. उसका कोई रिजल्ट, मतलब कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होगा. अगर सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. अगर नॉर्मली ऐसे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, जो कि आप अच्छे कर सकते थे, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंटेनिंग नोट्स एंड रिविजन. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट शॉर्ट सर्किट टेस्ट. So, what is the aim of the experiment? Tell me. To find the iron losses, to find the full load copper loss.
Okay, so this is a single phase variac. So variac का एप्लीकेशन क्या होता है, टेल मी. यहां पे आपको वेरिएबल वोल्टेज मिलता है इन बिटवीन 0 to 300 वोल्ट एंड इट इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर. इट इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर. यहां पे आप वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा इन द रेंज ऑफ 0 to 300 एंड दिस इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर. दिस इज वेरिएक. सो यहां पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट. तो शॉर्ट सर्किट मीनिंग क्या है, हम सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे. विल यू बी हैप्पी? हम सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे. विल यू बी हैप्पी? नो. हम क्या करेंगे, सोर्स को नहीं, हम लोड साइड को, सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे. ठीक है, दिस इज शॉर्ट सर्किट. तो यहां पे इंड्यूस वोल्टेज आएगा E2. इंड्यूस वोल्टेज आ गया, लेकिन यहां पे क्या होगा, इंड्यूस. सी, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल लोड कॉपर लॉसेस फाइंड करना है. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल लोड कॉपर लॉसेस फाइंड करना है. तो फुल लोड कॉपर लॉसेस फाइंड करने के लिए आपका वाइंडिंग में फुल लोड करंट फ्लो होना चाहिए. एम आई करेक्ट? लेकिन यहां पे E2 अगर है एंड ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो यहां पे क्या, कितना करंट फ्लो होगा, I2 विल बी E2 बाय, इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत कम होगा. तो ये बहुत ज्यादा करंट नहीं होगा. ये शॉर्ट सर्किट current will be very high or not? Tell me whether the short circuit current will be very high or not. Tell me. Yes, it will be very high because this is dead short circuit. So impedance seen by this source, impedance seen by this voltage is less. Okay, so current will be high from Ohm's law. So यहाँ पे जो current मिला, ये full load current, this is not at all a full load current. It is more, काफी times folded है, 5 to 8 times the full load current. Write down. नॉर्मली क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट इज 5 to 8 टाइम्स फुल लोड करंट. ओके, सो 5 to 8 टाइम्स फुल लोड करंट है. सो यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, फुल लोड कॉपर लॉसेस फाइंड करना था. लेकिन हम इस कंडीशन में कभी फाइंड कर सकते हैं, नेवर नहीं कर सकते हैं. तो मुझे अल्टीमेटली ISC को क्या करना है, रेटेड बनाना है. I रेटेड बनाना है एंड ISC इज नथिंग बट E2 बाय ZSC. E2 बाय ZSC. ZSC को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस है. तो क्या होगा यहां पे, हम अगर E2 को रिड्यूस करेंगे, E2 को अगर हम रिड्यूस करेंगे, देन ओनली आई विल बी गेटिंग ISC इक्वल टू I रेटेड. ISC इक्वल टू I रेटेड. समझ में आ रहा है आपको? तो अभी मेरा चैलेंज ये है कि E2 को हम कैसे रिड्यूस करेंगे. E2 कैसे रिड्यूस होगा, जब E1 रिड्यूस होगा. E1 कैसे रिड्यूस होगा, जब सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस होगा. तो सप्लाई वोल्टेज कब रिड्यूस होगा, जब हम वेरिएक यूज करेंगे. ओके, सो यहां पे हमको अल्टीमेटली क्या होगा, वी विल अप्लाई, राइट डाउन, वी विल अप्लाई a reduced voltage, not the rated voltage. We will apply a reduced voltage, not the rated voltage. That's why I am using variac. That's why I am using the variac. Okay, getting the point? So variac अगर यूज करेंगे एंड साइमल्टेनियसली एमीटर आपके पास कनेक्टेड है. एमीटर क्या करेगा, इट विल शो द करंट रेटिंग, करंट थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग. ओके, सो प्राइमरी में जब रेटेड करंट फ्लो होगा, देन सेकेंडरी में ऑब्वियसली रेटेड करंट फ्लो होगा, क्योंकि वी नो दैट K इज इक्वल टू I1 बाई I2. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज I1 बाई I2. तो प्राइमरी में अगर रेटेड फ्लो हो रहा है, देन ऑब्वियसली सेकेंडरी में होगा. सो द ट्रांसफॉर्मर इज कैरिंग द रेटेड करंट, सो द लॉसेस विल बी rated copper losses. So in this case, this wattmeter will show the rated copper losses or full load copper losses. So full load copper losses के लिए हमको क्या चाहिए, reduced voltage चाहिए, ना कि rated voltage चाहिए. अगर rated voltage में अगर हम अप्लाई करेंगे, then the short circuit, then the current in the winding of the transformer is 5 to 8 times the full load current. Okay, so हमको क्या करना है, reduced voltage में ही
आपको ऑपरेट करना है ट्रांसफार्मर को. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट. Okay, this is the equivalent circuit. So I can write the KVL equation here. VSC is equal to ISC R01 plus J ISC X01. So ISC को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, R01 plus J X01. So इसको हम क्या लिख सकते हैं, ISC into Z01. So I can write here VSC is equal to ISC times Z01. VSC is equal to ISC times Z01. Okay, ISC is the short circuit current. So VSC is not the rated voltage, VSC is the reduced voltage. To circulate the rated current. VSC is the reduced voltage to circulate the rated current. Okay. Now, so there might be a question in your mind कि सर यहाँ पे नो लोड ब्रांच आप क्यों नेग्लेक्ट कर दिए. Why I neglected the no load branch? Just because I am applying the reduced voltage. तो reduced condition में flux क्या होगा, flux is directly proportional to V1 by F. reduced voltage मतलब V1 reduce हो गया तो flux क्या होगा, reduce होगा. So flux is less than the rated flux. So flux rated flux से कम है, बहुत ज्यादा कम है. इसका मीनिंग क्या होगा, your transformer is not at all operating at rated flux. So rated flux में नहीं ऑपरेट कर रहा है, so आयरन लॉस क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा. So we can ignore the iron loss because this is not at all operating at rated flux. मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आयरन लॉस डिपेंड्स अपॉन, आयरन लॉस इज ए फंक्शन ऑफ रेटेड फ्लक्स. सो फ्लक्स यहाँ पे बहुत कम है तो आयरन लॉस क्या होगा, बहुत ही कम होगा. सो आई कैन इग्नोर द आयरन लॉस. दैट्स व्हाई आई इग्नोर द शंट ब्रांच पैरामीटर. ओके, एंड अनदर थिंग, द एक्साइटेशन करंट, सॉरी मैग्नेटाइजिंग करंट इज इक्वल टू V1 by JXM. सो V1 अगर कम है तो IMU भी बहुत कम होगा. सो आई कैन इग्नोर IMU also. That's why this is the equivalent circuit of short circuit test. Now the question is that whether we will conduct the short circuit test in the low voltage side or high voltage side. So you have to comment in the comment section whether we should conduct the short circuit test in the low voltage side or high voltage side. So this is all about your short circuit test, and short circuit test gives the result of full load copper losses. So my question is that whether the short circuit test will be conducted in the low voltage side or high voltage side, and what is the reason behind it, you have to answer in the comment section. ठीक है. So this is all about your today's class. We discussed the problems of the copper losses, iron losses, okay, and also we discussed the concept regarding the testing of the transformer. In the next class we'll discuss some numericals on testing of the transformer and we'll discuss the efficiency of the transformer. उसके बाद हम voltage regulation discuss करेंगे. ठीक है. So thank you all of you for watching this video. And another thing, Genic Live app में you can download from Play Store. Okay. And Genic Live app में आप बहुत सारे
जितने भी जेनिक का पेड कोर्सेस है मेनली, जैसे कि आपका लाइव क्लास फॉर गेट 2022-23 दैट इज गैलेक्सी जेनिथ कोर्स है, उड़ान का कोर्स है आपका, एंड प्रहार का कोर्स है। ये सारे चीज आप जेनिक लाइव ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। एंड दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट जेई एंड एई एग्जाम, ठीक है, जिनको अगर जेई एग्जाम पे भी फोकस करना चाहते हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर जेनिक जेई स्टडी चैनल इन द यूट्यूब, and you can take the advantage from the technical and non-tech section also, ठीक है। जेनिक जेई का भी बहुत बड़ा टीम है, वहीं पे टेक्निकल कंटेंट भी मिलेगा, नॉन टेक कंटेंट भी मिलेगा। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू ऑल।